Okay, in our last session, as you all know, we have started the first essential element of the contract to be discussed in detail, and that is we have started the topic of a offer. Okay, up to the last session, we discussed that offer is the first step of creation of a contract. Okay, when one person makes offer to another and another given acceptance, okay, the process of creating the contract gets started. Then we discussed that section 2A of Indian Contract Act defines the term offer. Then हमने last lecture में offer की definition भी discuss की. That is when one person signifies his willingness to another to do or abstain from doing anything, with a view to obtain the assent of that other. The person is said to make an offer, okay. And then इस definition के हिसाब से जो essential elements of offer आते हैं वो हमने last lecture में discuss किए. जैसे कि there should be one person making an offer, called as an offerer or a proposer or a promiser. The person whom the offer is made is called as an offeree or a proposee. And when the offer get accepted, the person will be called as a क्या call किया जाएगा वहाँ पे promisee, or another name acceptor will be there. Okay. Then we discuss that an offer may be a negative or positive. Offer must be expression of a willingness. Mere expression of willingness is not enough. Okay, it should be made with a view to take the assent of that other. Okay, then only an offer can be created. ये सारे पॉइंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए. देन हमने क्या डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ ऑफर हमने लास्ट लेक्चर में क्या किए थे, डिस्कस किए थे. जैसे कि हमने जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किए थे उसमें हमने डिस्कस किया कि व्हेन एन ऑफर इज मेड to a specific person only, then it is called as a specific offer. Okay, then we discussed when offer is made to the public at large, it is called as a general offer. Then we discussed when an offer is made with the words, it's called as an express offer. When an offer is made through the conduct by implication, then offer is considered as an implied offer. Then we discussed when an modification is made, any kind of the change is made in the original offer, then it will be considered as a counter offer. Counter offer की वजह से ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाती है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता काउंटर ऑफर पे. ओके, देन वी डिस्कस क्रॉस ऑफर व्हेन अननोन टू द ईच अदर्स ऑफर टू पर्सन मेक आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर, देन इट इज कंसिडर्ड एज क्या कंसिडर किया जाता है, उसको क्रॉस ऑफर कंसिडर किया जाता है. एंड देन वी डिस्कस्ड, क्या डिस्कस किया था हमने, व्हेन एन ऑफर रिमेन ओपन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम, then it is considered as क्या consider किया जाता है, open offer और continuing offer उसको consider किया जाता है. Okay, now the next point we are going to discuss, that is essential elements of a valid offer. एक offer को valid होने के लिए कुछ essential elements का होना जरूरी है. That essential elements of valid offer we are going to discuss right now. Essential elements of valid offer is the point we are going to discuss. Okay, essentials of a valid offer. Number one point क्या चाहिए देखो, it must be capable of creating the legal relation. अगर आपको essential elements of valid contract याद होगा तो वहां पे भी हमने डिस्कस किया था जो जनरल सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है वो क्या नहीं क्रिएट करते, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करते. वहां पे भी वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था कि देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. नाउ द पॉइंट इज दैट उनकी ऑफर ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको टर्म से क्लियर पता चले कि वहां पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है. सो वेरी फर्स्ट थिंग फॉर मेकिंग अ वैलिड ऑफर is it must be capable of creating the legal relations. Let's see, देखो, offer must be of such in the law capable of being accepted and giving rise to the legal relationship. Offer ऐसी होनी चाहिए जिसको एक्सेप्ट किया जा सके और जिसमें से क्या क्रिएट हो, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो. If the offer does not intend to give rise to the legal consequences of creating legal relationship, it is not considered as a valid offer in the eye of a law. अगर ऑफर ऐसी है कि जिससे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा, तो फिर वो ऑफर वैलिड ऑफर कंसीडर नहीं की जाएगी वहां पे. A social invitation, even if accepted, does not give rise to the legal relation because it is not intended. Okay, देखो सिंपली एग्जांपल दे सकते हो, टुडे इज माय बर्थडे, come for my birthday. This is a social invitation. Okay,
दिस कैन नॉट क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप। इससे क्या नहीं क्रिएट होगा बोलो, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा। हाँ, nobody is there in my home today, would you like to come to give me a company? हाँ, then again it is considered as a social invitation, that is not going to create any legal relationship. Today is my sister's marriage, okay, will you come for the marriage? Again this is a social invitation, that is not going to be created any kind of the legal लीगल रिलेशनशिप क्रिएट वहां पे नहीं होगी। हाँ, लेट्स सी, देखो फर्दर मोर ऑफर कैसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी सर्टन, डेफिनेट एंड वेग। हाँ, एक पॉइंट याद रखो हमेशा, अगर ऑफर क्लियर नहीं है, सर्टन नहीं है, ऑफर वेग है, तो उसका रिजल्ट हमेशा वॉइड एग्रीमेंट होगा। हाँ, अनसर्टन ऑफर से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं हो सकता। अगर ऑफर अनसर्टन है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, एग्रीमेंट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट, नॉट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो फ्रॉम द बिगिनिंग ही कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होगा। ओके, जैसे कि मेनी टाइम एग्जांपल आई हैव गिवन यू, आई हैव 3 car, okay, and I'm asking you, would you like to purchase my car? Not specifying which one car I would like to give you. Offer is not clear, offer is not certain, so this is not going to create any kind of the valid contract. Or you can take out an example, I told you that मेरा किराना शॉप है जिसमें ना डिफरेंट टाइप्स के ऑयल हमारे शॉप में, ओके, कोकोनट ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। हाँ, और आपने शॉप में और पूछा कि मैम 10 टीन्स ऑफ द ऑयल चाहिए, 10 डब्बा तेल चाहिए। मैंने बोला हाँ ठीक है। हाँ, नाउ वी डिडंट स्पेसिफाई कि कौन सा ऑयल, कोकोनट ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ये हमने वहां पर स्पेसिफाई नहीं किया, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफर सर्टन नहीं है, डेफिनेट नहीं है, कैसी है, वेग है, इनफैक्ट क्लियर नहीं है। हाँ, इफ द टर्म्स ऑफ ऑफर आर वेग और इनडेफिनेट, its acceptance cannot create any contractual relationship। हाँ, अगर ऑफर के टर्म सर्टन नहीं है, हाँ क्लियर नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा। हाँ, thus where A offers to sell B 100 क्विंटल ऑफ द ऑयल, ए बी को ऑफर करता है 100 क्विंटल ऑफ ऑयल सेल करने के लिए, और ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं कि कौन सा ऑयल, there is nothing whatever to show what kind of the oil was intended, then offer is not capable of being accepted for a want of certainty। हाँ, certain नहीं है ना, clear नहीं है, तो ये ऑफर capable of being acceptance नहीं है, इसके वजह से ऑफर क्या नहीं होगी बोलो, वैलिड ऑफर कंसिडर की नहीं जाएगी। ओके, नाउ तो अगर उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में हमने लिखा ही नहीं कि कौन सा ऑयल मुझे आपको बेचना है, then that agreement is not going to create any kind of the valid offer। Okay, so offer is not capable of being accepted for the want of a certainty। What kind of oil was it intended to be sold, ये हमने लिखा ही नहीं। हाँ, so therefore offer यहाँ पे capable of being accepted नहीं है, because offer क्या नहीं है देखो, certain नहीं है। Okay, हाँ, but I have one particular point for you which is sometime asked in the examination also। Okay, and that point is that suppose मेरा प्योर शिंगदाना तेल का शॉप है। हाँ, इफ आई हैव अ शॉप इन विच वी गेट वी सेल ओनली ग्राउंडनट ऑयल, प्योर ग्राउंडनट ऑयल का शॉप है। ओके, now you came in my shop and asked for the 10 tins of oil, and I told you, okay, I'm ready to sell you the 10 tins of oil। Is it necessary to specify which oil in this particular case? याद रखो, यहाँ पे एग्रीमेंट अनसर्टन नहीं है, क्योंकि इस दुकान में आपको शिंगदाना तेल छोड़ के कुछ मिलता ही नहीं है ना, तो फिर सवाल ही नहीं आता कि आपको कुछ दूसरा वहां पे क्या करना है, खरीदना है। सो यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, ऐसे वहां पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो द ऑफर विल बी वैलिड इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि उस दुकानदार के शॉप में एक ही ऑयल मिलता है। हाँ, बट व्हेन दुकानदार इज सेलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल एंड देन नॉट स्पेसिफाइड व्हिच टाइप ऑफ ऑयल इज टू बी सोल्ड, then the agreement will be considered as a void agreement। Okay, now next one देखो, it must be communicated to the offeree। किसको communicate करना है इसको, offeree को communicate करना है offer को। देखो very simplest point has been that one। हाँ, क्या simplest point है वहां पे कि अगर मैंने आपको बोला ही नहीं would you like to purchase my car, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे आपको कार बेचनी है। हाँ, एक रूल होता है, acceptance given without knowing the offer is considered as a not valid acceptance। Okay, आपको ऑफर ही नहीं पता थी और आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, तो ऐसा एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है। हाँ, राइट्स एंड ड्यूटीज अराइज नहीं होंगे। सो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom it is made। जिस भी किसको ऑफर किए उसको ऑफर कम्युनिकेट होना क्या है वहां पे,
जरूरी है। हाँ, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom the offer is made। जिस भी किसको ऑफर की थी उसको कम्युनिकेट होना जरूरी है। हाँ, देखो क्या गया, एन ऑफर टू बी कंप्लीट मस्ट बी क्या करना चाहिए, कम्युनिकेटेड to the person to whom it is made। Okay, if I'm on to sell my car to Mr. Rohit, then I must ask Mr. Rohit, okay, would you like to purchase my car? Unless and otherwise I'm asking Mr. Rohit that would you like to purchase my car, he is not going to come to know that I'm interested in selling my car to him। Okay, so an offer to be complete, it must be communicated to the person to whom it is made, otherwise there can be no acceptance। हाँ, ऑफर ही पता नहीं थी तो उसका एक्सेप्टेंस कोई मैटर नहीं करता है। अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। हाँ, ऑफर कम्युनिकेट नहीं होगी तो उसका एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता है। एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इन, हाँ ये वाला रूल याद रखो, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब पेपर में पूछा जाएगा तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस। हाँ, एंड डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑन द एक्सेप्टर। दिस वाला लाइन मैटर करता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस लॉ का इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आपको ऑफर ही पता नहीं थी एंड विदाउट नोइंग द ऑफर आपने एक्सेप्टेंस दिया है तो वो एक्सेप्टेंस है ही नहीं, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। एंड ऐसे एक्सेप्टेंस से कोई भी राइट्स क्रिएट नहीं होंगे एंड डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑन द acceptor। Okay, so this one is an important rule which has been laid down in the case of a famous Lalman Shukla versus Gauri Dutt। Okay, you must have to remember this particular case, Lalman Shukla versus Gauri Dutt वाला केस। अब तक हमें क्या हुआ, वो एक रमन लाल का केस गया हुआ है टू पार्टीज के लिए पार्टनरशिप फॉर्म के डिसोल्यूशन का। देन बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का केस गया हमें, जिसमें हमने वो हस्बैंड वाइफ वाला इंटेंशन टू लीगल रिलेशनशिप के लिए देखा हुआ केस था। नाउ द नेक्स्ट केस वी आर डिस्कसिंग इज अ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला केस हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ओके, मैं आपको क्या करती हूँ, पहले ना इस केस के फैक्ट्स जो है ना वो थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में बताती हूँ। हाँ, एंड देन हम क्या करते हैं वहां पे इसको डिटेल में वापस मॉड्यूल लैंग्वेज में जाते हैं। ओके, व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस, देखो वन पर्सन कॉल्ड एज अ गौरी दत्त, एक इंसान है जिसका नाम है गौरी दत्त। हाँ, उसका नेफ्यू मिसिंग है, इस गौरी दत्त का नेफ्यू क्या हो गया वहां पे, मिसिंग है। हाँ, और इस गौरी दत्त ने क्या किया, अपने मिसिंग नेफ्यू को ढूंढने के लिए लालमन शुक्ला मतलब अपने सर्वेंट को भेज दिया वहां पे। हाँ, Gauri Dutt sent his servant to find out his missing nephew and the name of the servant was the Lalman Shukla। Okay, अब वो सर्वेंट ना उस मिसिंग नेफ्यू को ढूंढने के लिए गया हुआ है। ओके, द सर्वेंट वेंट टू फाइंड आउट द मिसिंग नेफ्यू। हाँ, और वो सर्वेंट उधर जाने के बाद क्या हो गया, इस गौरी दत्त को रेस्टलेसनेस फील हो गया क्योंकि अभी भी वो बच्चा मिला नहीं था। हाँ, नेफ्यू मिला नहीं था, तो गौरी दत्त ने क्या कर दिया, रिवॉर्ड डिक्लेयर कर दिया। हाँ, कि एनीवन हु विल फाइंड हिज मिसिंग नेफ्यू विल बी गिवन अ सर्टेन रिवॉर्ड, ऐसा रिवॉर्ड डिक्लेयर कर दिया। अब इस रिवॉर्ड के बारे में किसको पता नहीं है, लालवन शुक्ला को, मतलब सर्वेंट को कुछ भी पता नहीं है क्योंकि सर्वेंट तो नेफ्यू को ढूंढने गया हुआ है। एंड दिस इज अ ओल्ड केस। ओके, एट दैट टाइम देयर वाज नो मींस ऑफ मोबाइल फोन एंड ऑल दैट एक्सेट्रा। टेलीफोन भी कहीं हार्डली 10 घरों में एक घर में होगा एंड मोबाइल का तो सवाल ही नहीं था। ओके, सो देयरफॉर प्रोबेबली आज के जमाने में ये केस एक्सेप्ट करना हमें थोड़ा सा डाइजेस्टेबल नहीं होगा, बट उस जमाने के लिए राइट वे है। हाँ, तो इस लालवन शुक्ला को मतलब सर्वेंट को रिवॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता है। मतलब गौरी दत्त ने जो ऑफर किए, मास्टर ने जो ऑफर किए उसके बारे में किसको बिल्कुल पता नहीं है, सर्वेंट को कुछ भी पता नहीं है। ओके, एंड इधर गौरी दत्त रिवॉर्ड डिक्लेयर कर देता है। अब क्या होता है, उस नेफ्यू को लालवन शुक्ला ढूंढता और ढूंढ के लेके आता है। हाँ, एंड मास्टर को दे देता है। ओके, एंड जब वो मास्टर को देता है तब उस टाइम उसको पता चलता है अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑफर, इस ऑफर के बारे में उसको पता चला। ओके, अब वो ऑफर क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि आई हैव फाइंड आउट अ मिसिंग नेफ्यू एंड यू डिक्लेयर्ड अ रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग द मिसिंग नेफ्यू, तो मुझे वो रिवॉर्ड आप दे दो। लेकिन कोर्ट ने क्या हेल्ड किया इस दिस पर्टिकुलर केस में कि नॉर्मली हमारा लॉजिकल सेंस भले ही बोले कि उसको वो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, बट रूल है कि आपको अगर ऑफर ही पता नहीं थी और उसका एक्सेप्टेंस आपने दे दिया तो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है और ऐसे एक्सेप्टेंस पे आपको कोई भी राइट्स एंड ड्यूटीज मिलने वाले नहीं है। ओके, सो कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर रूल जो मैंने यहाँ पे बोल्ड करके रखा हुआ है, हाँ, कोर्ट हेल्ड कि ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिवॉर्ड, कोई भी रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए वो क्या नहीं था, एंटाइटल्ड नहीं था, एज ही डिड नॉट नो द ऑफर, क्योंकि उसको ऑफर ही पता
नहीं थी. ओके, सो acceptance given without knowing the offer is not an acceptance and it does not create any kind of the rights. Okay, now see, देखो, Gauridat sent his servant Lalman to trace his missing nephew. We are looking to the fact of a Lalman Shukla versus Gauridat. What happened in this particular case? Gauridat ने अपने missing nephew को ढूंढने के लिए अपने servant Lalman को भेज दिया. He then announced that anybody who trusts his nephew would be entitled to certain reward. ठीक है? Now L trusts the boy in ignorance of announcement. सर्वेंट ने उस बॉय को ढूंढा बट उसको इस अनाउंसमेंट के बारे में पता ही नहीं है. Subsequently, when he came to be know of a reward, he claimed it. जब उसको उस रिवॉर्ड के बारे में पता चला तो उसने वो रिवॉर्ड क्या किया, क्लेम किया. Now it was held in this particular case that he was not entitled to the reward. क्यों entitled नहीं था रिवॉर्ड के लिए वो सर्वेंट? क्योंकि उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था. Because he did not know the offer. And the law says, law जो है वो क्या कहता है, acceptance of offer in ignorance of offer is not an acceptance and therefore it does not confer any right on the acceptor. इससे acceptor पे कुछ भी rights क्या नहीं होंगे, create नहीं होंगे. Okay, so offer must be communicated to the person to whom it is made. And offer आपको पता चलने के बाद ही आपको क्या करना है, उसका acceptance देना है. ध्यान में आ रहा है कि देखो, number 1, offer must be made with the intention of creating legal relationship. Number 2, offer must be communicated to the offeree, that is to the person whom the offer is made. And इसका very famous judgment हमने discuss किया, लालमन शुक्ला versus गौरीदत्त का judgment हमने क्या किया, discuss किया. Now next point क्या रहा है देखो वहां पे, next point and okay, one more point we discussed, that is offer must be certain, clear, not vague and etc. Now next point क्या रहा है देखो, it must be made with a view to obtaining the assent of the other party. Just mere willingness of expression is not enough. ध्यान में आ रहा है क्या देखो, just mere expression of willingness is not enough. Okay, I'm thinking to buy the car. That did not mean that will you sell me your car. I'm thinking to get married. That did not mean that I'm asking you or that any particular person, a boy is asking, will you marry me? I'm thinking to purchase a house. This is not an offer. Okay, when I add the word, will you sell your house? Will you sell your car? Then only it is considered as the offer. The offer must be made with a view to take the assent of that other party. Mere expression of willingness is not enough. You must add your words which will show that you want to take the assent of that other party. आपके ऑफर में आपको वो वर्ड्स ऐड करने हैं जिससे ये क्लियर होगा कि आपने ये ऑफर सामने वाले की लेने के लिए की है. Let's say देखो, offer must be made with a view to obtaining the assent of the other party address and not merely with a view to disclosing the intention of making the offer. Okay, mere declaration of intention, mere declaration of the willingness is not enough. It must be added with a word which will show your intention that you want to take the assent of the other. अब यहाँ पे वो example भी add कर सकते हो कि a boy is telling to the girl that by the end of 2019 I'm thinking to get married. Okay, this is not an offer because it is mere expression of the willingness. But when he add the word will you marry me, then it is made with the intention that the girl should say the yes, and therefore it will be considered as the offer. तो वो जो हमने ऑलरेडी ऊपर देखा हुआ एग्जाम्पल था वो यहाँ पे ऐड किया जा सकता है. देन याद रखो ये वाला सेंटेंस जो है ना अगला, हम नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे ना, एक्सेप्टेंस, इसेंशियल एलिमेंट का वैलिड बनने के लिए जो इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो सेकंड पॉइंट आता है वो एक्सेप्टेंस है ना. ऑफर के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं चलता है. Acceptance must be as it is. Acceptance must be unconditional. Acceptance must be absolute. आपने जैसी ऑफर की है वैसा ही एक्सेप्टेंस आया तो ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो सकता है. अगर ऑफर में कोई भी चेंज किया, अल्टरेशन किया, मॉडिफिकेशन किया तो क्या होगा बोलो, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का याद है आपको, वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से काउंटर ऑफर, एंड काउंटर ऑफर से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता है. बट यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूजन करते हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस में. ऑफर कैन बी कंडीशनल. ओके, would you like to purchase my car but subject to condition that I want cash only. या opposite side, I would like to purchase your car
would you like to sell your car to me subject to condition that I will give you installment only. तो ऑफर आप कंडीशनल कर सकते हो बट एक्सेप्टेंस कभी कंडीशनल नहीं हो सकता. ओके, एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस बाय ऑफरर. हाँ, ऑफरर में आस्क फॉर अ पेमेंट ऑफ आरटीजीएस. जैसे आई एम रेडी टू सेल योर गुड्स बट आई वांट अ पेमेंट ओनली थ्रू द आरटीजीएस. या फिर ना आई वांट टू सेल योर गुड्स बट आई वांट ओनली एनईएफटी. So the offeree will have to accept all the terms of offer, otherwise contract will be treated as invalid. मैंने आपको ऑलरेडी बताया. हाँ, जैसी ऑफर किया एज इट इज ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए. ओके, जैसे व्हेन आई आस्क यू वुड यू लाइक टू परचेस my car, subject to condition that I will give your possession on 10th of June only, and you are saying okay ma'am, I would like to purchase your car, that too on a price you are saying, but I want possession only on the 8th of June. Now this is not a valid acceptance. क्योंकि आपने कंडीशन को वहां पे क्या किया, चेंज किया ना. तो ऑफर में जो भी सारे कंडीशंस दिए वो कंडीशंस एज इट इज एक्सेप्ट किए तो ही क्या हो सकता है, बोलो वहां पर वैलिड ऑफर क्रिएट हो सकती है. तो ऑफर कंडीशनल हो सकती है, याद रखो, लेकिन एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता है. ओके, देन मैं सो अप टू द पॉइंट कौन कौन से पॉइंट्स हमने डिस्कस किए. देखो, वैलिड ऑफर को बनाने के लिए नंबर 1, ऑफर ऐसी होनी चाहिए which must be capable of creating the legal relationship. Okay, just like a social invitations does not create a legal relationship and therefore they are not a contract or they are not a valid offer. Okay, then offer must be certain, definite, not vague. It must be clear. Only in that case the contractual relationship will be created. And I told you, सोचना भी नहीं. अगर आपको वेग ऑफर का एग्जांपल दिख रहा है वहां पे जिसमें ऑफर क्लियर नहीं है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लियर नहीं है, तो आप उसको वॉइड एग्रीमेंट डाल देना. क्योंकि अगर ऑफर क्लियर नहीं है, वेग है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टन है, तो उसका रिजल्ट हमेशा वॉइड एग्रीमेंट ही होगा. क्योंकि वो शुरू से ही वैलिड नहीं है. ओके, देन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. अगर आपको ऑफर ही पता नहीं है तो आप एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हो. तो लॉ कहता है कि एक्सेप्टेंस गिवन विदाउट नोइंग द ऑफर is not an acceptance. It does not create any kind of the rights on the acceptor. Okay, इसका very famous judgment हमने डिस्कस किया, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का मिसिंग बॉय का एग्जांपल हमने डिस्कस किया. Then we discussed that offer must be made with a view to take the assent of the other party. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि mere expression of willingness is not enough. Okay, आपका additional sentence क्या होना चाहिए, would you like to sell us, would you like to purchase, will you marry me. This will make your intention clear that you are making an offer with a view to take the assent of that other. Okay, and याद रखना acceptance conditional नहीं हो सकता है, but offer क्या हो सकती है, conditional हो सकती है. but offer में जो भी conditions दिए पूरे accept करना जरूरी है. Now the remaining essentials we'll discuss in our next session.